Hey guys, this is me Avi Dwivedi and you are listening me on Extended Reality Developers of India Community। और आज हमारे साथ एक बहुत ही मैग्निफिसेंट गेस्ट जुड़ रही हैं क्योंकि ये एक एंटरप्रेन्योर हैं, ये फोर्ब्स 30 एंड अंडर 30 में आती हैं, ये एक यंग लीडर हैं और एक इंडिया की सबसे बड़ी टेक कम्युनिटी को रन कर रही हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स इनवाइट Anubha Maneshwar is with us and let's introduce her and let's talk about you. Yeah. So hello everyone. This is Anubha, and I am founder of GirlScript Foundation and GirlScript Technologies. And I'm 25. I live in Nagpur, and yeah, I think this is all from my end. This is what I do. Yeah. Amazing. So, GirlScript Foundation sounds like a girl community, but there are boys on it, and there are 50% girls. So it's a huge number because you are motivating girls into this industry, into the tech community. And so let's talk about your journey through the GirlScript Foundation and what was the idea, what was the beginning, how it's all started, and let's talk about that. Yeah, so definitely, as you said, the name is GirlScript, but it has boys on it. So my initial concept was to do an organization for girls, and I started it under Mozilla Open Leaders program, where we have to submit a project, and then Mozilla team or the mentors help us in that project. So I submitted GirlScript as a project there. I was a student back then of final year engineering into around 2016 and 2017. So I got mentored from Mozilla, and then when I started working with the foundation actually in 2017, I realized that boys also from tier 2 and tier 3 cities need equal help because they also don't have support similar to girls. So why not create something which gives equal opportunities to both the gender and promotes equality rather than doing something which is only limited to a few section of the society. And already there are many organizations going on, diversity scholarships, and a lot of things were going on related to women only, like diversity scholarships to events, conferences, and a lot of things. So I thought, why not I club everybody together and I reserve some like seats, like half of the seats, so that compulsorily we have equal participation from both the parties. So that was my intention. So as I said, regarding journey, it started as a project under Mozilla Open Leaders program, and I just started with a community in Nagpur with few of my friends in college, and then we started working on it. And after like now 2-3 years, we have a community expansion across India, outside India as well. And apart from that, we also so it's just not a community GirlScript Foundation. We also have 6 to 7 other initiatives, right from tech in slums. So we have collaborated with CRY, Child Rights and You in Delhi, where we are running a program for 8 months to teach slum children about technology. We have partnered with Navgurukul in Bangalore, where we are teaching below poverty line students, especially running batches and classes for these people. And then we are also running GirlScript Summer of Code from last 3 years, Uplift program, which is for mentoring the students. And likewise, there are n number of program, education outreach, COVID coding programs. So we are not just a community. Community is one part of it, but we are an organization, a non-profit organization that has various initiatives, and definitely community is the backbone with which we started initially. Yeah. अमेजिंग। सो जैसा कि आपने कहा, आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो और आपने काफ़ी सारे सेक्टर्स में और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए काम करा है इन पास्ट 3 years। सो इट्स वाज फाउंडेड इन 2017 एंड इट्स 2020 नाउ। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस सेक्टर में आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी कम्युनिटी ने क्रिएट करा है, या आपके जो पूरे सभी लोग आपके साथ जो जुड़े हैं उनके काम ने किस तरीके का इम्पैक्ट जो है इंडस्ट्री में क्रिएट करा है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी? जरूरत ये चीज की थी कि हम लोग ज्यादा फोकस ना करें कि हमें क्या मिल रहा है रिटर्न में, या हम वॉलंटियर क्यों कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या हम सिर्फ टी शर्ट्स या स्वैग्स या ये सब चीजों के लिए जा रहे हैं किसी इवेंट में। बट जरूरत ये थी कि हम सीख क्या रहे हैं, हम लोगों की कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम कितने लोगों से पर्सनली बात कर रहे हैं, हम कितने लोगों से पर्सनली उनके प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। तो जरूरत थी रेगुलरिटी की, जरूरत थी कस्टमाइजेशन की, जरूरत थी ये समझने की कि कैसे छोटी सिटी के लोग
कि प्रॉब्लम बहुत अलग होती है और बड़ी सिटी में जो कम्युनिटीज चलती है वो बहुत अलग होती है, और दोनों का कोई मैच नहीं हो सकता। अगर आप वो चीजें यहाँ पढ़ाने लगो या यहाँ की चीजें वहां पढ़ाने लगो तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजों की जरूरत थी, एक तो रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, इक्वालिटी, एंड देन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड देन कस्टमाइजिंग द सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू इट। तो ये सारी चीजों की आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरत थी, एंड दैट्स वेयर वी फोकस। एंड रिगार्डिंग द इम्पैक्ट, हमारा कहाँ सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, तो मुझे ये लगता है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट एरिया तो हमारा अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स का ही है, बिकॉज हम लोग हमेशा 10% लोगों पे फोकस करते हैं। जितनी भी कम्युनिटीज चलती है, जो 10% लोग होते हैं एक क्लास के जो क्यूरियस होते हैं, चाहे वो बड़े से बड़े कैंपस के हो, आईआईटी के, या फिर एक छोटे से छोटे कैंपस के हो, हर किसी क्लासरूम में 10% स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हर चीज पता होती है, या नहीं भी पता होती तो वो इच्छा रखते हैं जानने की कि आगे क्या होने वाला है, मेरा फ्यूचर कैसा दिखेगा। दे प्लान एवरीथिंग, दे हैव एवरीथिंग इन माइंड कि अगर उन्होंने एडमिशन भी लिया है कॉलेज में तो क्यों लिया, आगे वो क्या करेंगे, दे नो द रियलिटी। लेकिन जो 90% स्टूडेंट्स होते हैं उन पे कोई ध्यान नहीं देता, उनको नहीं पता होता ये सब कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती है, उनको नहीं पता होता कि इसमें पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, उन या फिर उनको अगर चीजें पता भी होती है उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो एक्सप्रेस कर पाए। हो सकता है वो 10% जो बाकी लोग हैं उनसे ज्यादा जानते हो, बट वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और लास्ट चीज ये भी होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली क्लूलेस होते हैं, वो क्यों आए हैं कॉलेज, क्या करने आए हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ नहीं पता होता। तो मेरा फोकस इन्हीं लोगों पे है, 90% लोगों पे, बिगनर्स पे, जिनको कुछ भी नहीं पता है what future looks like, what is tech education, what is communication skills, what is employability skills, and focusing on these people। तो हमारा मेन इम्पैक्ट तो यहीं से चालू होता है, बिकॉज हमारी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं। लेकिन हम लोग जो अभी कर रहे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन स्टूडेंट्स के साथ, या हम स्लम चिल्ड्रन को इसलिए टेक्निकल स्किल्स पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो वहां से पढ़कर अपनी जॉब या कुछ मतलब इंटर्नशिप या कुछ भी एक्वायर कर सकते हैं, और वो एक विशियस सर्कल में अभी फंसे हुए हैं स्लम के बच्चे होने के बाद। तो वहां से वो लोग निकल के कुछ अच्छी लाइफस्टाइल देख सकते हैं आगे, अगर वो ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हैं, कंटेंट राइटर बन जाते हैं, या कुछ ऐसा सीख लेते हैं जो फ्रीलांसर की तरह भी लाइक विदाउट डिग्री वो लोग कर पाए। तो टेक्निकल एजुकेशन की एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें आपको डिग्री इज नॉट कंपलसरी। लाइक आप अगर स्किल्स में अच्छे हैं आप को जॉब मिल सकती है। इट इज नॉट लाइक बीइंग अ डॉक्टर या कुछ भी कि जिसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इफ यू डोंट हैव डिग्री पीपल वोंट कंसिडर यू, ऐसा नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई थिंक इस एरिया में भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। हमारे जो प्रोग्राम की रेंजेस है, इट इज फ्रॉम स्लम चिल्ड्रन टू वर्किंग प्रोफेशनल्स, हम सभी को कवर करते हैं। एंड आई थिंक सब में ही हमारा इम्पैक्ट, लाइक हम तो इक्वली देने की कोशिश करते हैं कि हम सबको इक्वली हेल्प करें। And this is the one thing which I love the most about your community कि आप 90% ऑफ मासेस पे फोकस करते हो। आपने ऐसी जगहों पे भी अपने जो सेंटर्स हैं वो चला रहे हो जहाँ पे नॉर्मली टेक कम्युनिटीज़ की रीच नहीं होती, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में आपकी कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही है। सो दिस इज़ वेरी फैंटेस्टिक एंड इट्स अ वेरी वंडरफुल जॉब दैट which are doing, because usually communities usually focus on the major cities, big cities, and you are spreading the education and you are making the education accessible to all the small cities as well. So this तो which is very commendable. जैसे मैं आपने जम्मू की बात की, तो जम्मू में हमारी कम्युनिटी सबसे पहले आई थी, और 93.5 रेड एफएम पे हमारी कम्युनिटी का जो चैप्टर लीड है मोहित शर्मा, जो वहाँ से लीड करते हैं, तो उनका Right. इंटरव्यू भी ऑन एयर गया था रेडियो स्टेशन पे। बिकॉज वहाँ पे समझना होता है चीज़ें कि उनका इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरे टाइम नहीं होता है, तो जैसी एक्सपेक्टेशंस हम दूसरे लोगों से रखते हैं हम वहाँ पे लोगों से नहीं रख सकते। उनकी स्पीड लिमिट कम है, कभी कभी वो लोग कैफेज जाते हैं एंड देन दे सेंड अस इवेंट फोटोज या कुछ भी, या अपडेट्स या जो भी चीज़ें होती है, बिकॉज वहाँ का बहुत अलग। लेकिन हमने वहाँ भी स्पीकर भेजा है, अगर कोई भी इवेंट हुआ है तो हमने लाइक खर्चा उठाया है वहाँ पे, मतलब स्पीकर्स को भेजा, सारी चीज़ें की, ताकि लोग वहाँ पे और जान पाए कि क्या चीज़ें हो रही है। तो सिमिलरली बिहार में हाजीपुर में हमने कम्युनिटी स्टार्ट की। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी पहले नहीं था, और हम लोग वहाँ पे पहुँचे, और आई थिंक दिस इज व्हाट आई फील रियली फैसिनेटेड अबाउट। या Amazing. So अनुभा, गर्ल्स टेक कम्युनिटी में यूजुअली गर्ल्स को ऐसा माना जाता है कि वो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें अंडरस्टूड नहीं कर पाएंगी, वो काफ़ी मतलब पीछे उन्हें समझा जाता है। बट आप गर्ल्स को लेकर एक कम्युनिटी स्टार्ट कर रहे हो, सो विच इज़ गर्ल्स स्क्रिप्ट, एंड सो गर्ल्स स्क्रिप्ट में 50% से भी ज़्यादा गर्ल्स हैं और ये एक काफ़ी टेक्निकल कम्युनिटी है। सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि क्या गर्ल्स किसी भी एंगल से टेक्निकलिटी में थोड़ा सा भी पीछे हैं? क्या आपका क्या इतने सालों में एक्सपीरियंस रहा है?
मैं रियलिटी की बात करूंगी तो गर्ल स्क्रिप्ट मैंने नाम कैसे रखा मैं उसके बारे में बताऊंगी थोड़ा सा। मैं फाइनल ईयर में थी जब 2017 में ही प्लेसमेंट चल रहे थे। HSBC जो बैंक है वो रिक्रूट करने आया था और हमारा फाइनल प्री फाइनल राउंड चल रहा था जिसमें प्रोग्रामिंग राउंड था। तो मैं 5 लड़कियों का ग्रुप था, उसके बाजू में मैं खड़ी हुई थी बिकॉज आई वॉज अलोन, मतलब देवर वर नॉट माई फ्रेंड्स। तो मैं उनके साथ खड़ी हुई थी। इट्स इंसिडेंट फ्रॉम नागपुर ओनली। तो वो लोग बोलते हैं अब नेक्स्ट राउंड तो प्रोग्रामिंग है तो चलो वापस चलते हैं, वी विल ट्राई फॉर अनदर कंपनी। दे वर क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड दीज गर्ल्स, बट दे वर नॉट इवन कॉन्फिडेंट टू सिट फॉर द राउंड। तो मतलब मेरा वहां से बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली आई डेंट नो देम, और शायद मुझे अब लगता है कि मुझे उनको वहां पे काउंसिल करना चाहिए था, बट आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट तो उतना मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाई। बट वो बात मेरे जहन में कहीं ना कहीं बैठ गई कि कैसे लोग डरते हैं, मतलब लोग पहले ही खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो हाँ, लड़कियों में ये चीज होती है। आई एम नॉट सेइंग कि सब में होती है, लेकिन बहुत सारी अच्छी लड़कियां भी है। जैसे गर्ल स्क्रिप्ट आयरलैंड जो कम्युनिटी है वो सिर्फ 2 लड़कियां चलाती है, तो पूरा वाह। आयरलैंड जो कंट्री का चैप्टर है वो 2 लड़कियां ही रन कर रही है। हमारा दिल्ली एनसीआर है उसमें रीजनल हेड लड़की है, शी इज ऑल्सो इनटू यूएक्स यूआई डेवलपमेंट। तो बहुत सारे जगह है जहाँ पे हाजीपुर जो बिहार की कम्युनिटी है वहां पे दोनों लड़कियां ही चैप्टर लीड है। तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे लड़कियां भी चला रही है, लेकिन हम इसलिए मौका देते हैं कि अगर एक सिटी का चैप्टर लीड है तो या तो एक लड़का और एक लड़की होना कंपलसरी है, या तो दोनों लड़कियां हो सकती है, 2 लड़के नहीं हो सकते, सो दैट वी मेंटेन द इक्वालिटी एंड वी ऑल्सो प्रमोट अदर गर्ल्स। क्योंकि एक लड़की अगर लीडर होगी तो उसको देख के दूसरे लोग भी आएंगे, और एक लड़का भी अगर सपोर्ट में होगा तो वो एक अच्छे कॉज को सपोर्ट कर रहा है। देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। सो शुरू में जब गर्ल स्क्रिप्ट की शुरुआत हुई थी, अ लॉट ऑफ बॉयज हु वर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी दे गॉट बुलीड, अरे तू तो गर्ल स्क्रिप्ट के साथ काम करता है, something like that. And then later on, now a lot of boys, a lot of men request me that I want to become a part of this community, and I don't feel anything bad in this because I think together we can solve this problem. If we isolate different groups, ये problem और बढ़ती जाएगी. So this is my perception, and that is how I take it. Yeah. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो मैंने आपके TEDx टॉक से पिक करा है। आपका एक बहुत ही शानदार TEDx टॉक है जिसमें आपने बताया कि किस तरीके से हमें बचपन से ही ये सिखा दिया जाता है कि अगर कॉम्पिटिटिव नहीं रहोगे तो कितने ज़्यादा उसके नुकसान हैं। आपको रेगुलरली कंपेयर करा जा सकता है आपके आस पड़ोस वालों से या आपके कज़न से, और ये सभी चीज़ें हम सबके साथ भी पर्सनली हुई हैं, सभी के साथ हुई है। और आपको जब किसी और से कंपेयर करा जाता है तो आप उसके पर्सपेक्टिव से देखने लग जाते हो चीज़ों को, और काफ़ी सारे उसके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो दिखते हैं। बट ये चीज़ इंडियन कल्चर में हमेशा से देखी जा रही है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि कंपैरिजंस को एजुकेशन सिस्टम में क्यों लाया जाता है। इवन द मार्क्स आर इन सच अ वे कि कितने सारे एजुकेटर्स, कितने सारे यूट्यूबर्स भी मेरे को मिलते हैं जो अपना वीडियो स्टार्ट करने के पहले इस चीज़ की बात करते हैं, ओके ये टॉपिक जो है आपको 5 नंबर दिला सकता है, या ये टॉपिक जो है आपको इस एग्जाम में हेल्प कर सकता है। ये दे डोंट टॉक अबाउट कि रेगुलर एप्लीकेशंस क्या है उस टॉपिक की और उसे कहाँ पे यूज़ करना चाहिए या किस तरीके से आप उसे रियल लाइफ में देखोगे। सो let's talk about this because this is a very fascinating subject. तो ये चीज होती है कि जैसा आपने बोला कि हर कोई अभी तक मुझे एक भी ऐसा चैनल नहीं मिला, एक भी ऐसी चीज नहीं मिली जहाँ पे ये बताया जाता हो कि, या इंटरव्यू किसी का लिया जाता है तो ये पूछा जाता है कि आपने कैसे किया, लाइक आपने आपके फॉर्म की ये फील्ड्स थी और इस स्कॉलरशिप फॉर्म में ये फील्ड्स में आपको आंसर लिखने थे, आपने आंसर एग्जैक्टली कैसे लिखा ताकि आप सिलेक्ट हुए। कोई भी ये नहीं पूछता, हर कोई सिर्फ ये पूछता है कि, मतलब हम लोग ज्यादातर स्टोरीज आर गुड, बट अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो अगर मैं मेरा कंपैरिजन किसी और से करूं नहीं हो सकता। अगर मेरी हेडलाइन फोर्ब्स में, अगर मैं फोर्ब्स एशिया में इस साल फीचर हुई, मेरे साथ आईआईटी रुड़की का भी एक बंदा फीचर हुआ था, एंड इफ यू सर्च ऑन गूगल तो आपको एक हेडलाइन मिलेगी, आईआईटी रुड़की ग्रेजुएट फीचर्स इन फोर्ब्स एशिया अंडर 30। मेरे बारे में कोई हेडलाइन नहीं आई, ठीक है। तो ऐसा होता है और मैं कंपेयर नहीं कर सकती, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, ना मैं उस चीज से जेलस फील कर सकती हूँ कि क्यों मेरे बारे में नहीं आया, बिकॉज ही वर्कड हार्ड, ही गॉट इनटू आईआईटी, एंड आई नो व्हाट स्ट्रगल इट टेक्स बिकॉज आई वाज अ ड्रॉप आउट फॉर आफ्टर 12th टू प्रिपेयर फॉर दैट, एंड आई कंप्लीटली रिलेट टू द फैक्ट कि कितनी मेहनत करनी होती है। अगर उस इंसान ने वो मेहनत की है, ही डिजर्व दैट हेडलाइन। आई हैव नॉट डन इट एंड आई केम फ्रॉम, ऑल्दो हम एक जगह मिल रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल कि आप
कॉलेज मैटर नहीं करता, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किस सिटी से आ रहे हैं, क्या चीजें, अगर आप एक जगह मिल रहे हैं दैट मैटर्स। तो और ये सब चीजें होती है। तो इंडिया में ये बस देखा जाता है कि नहीं, मुझे आईआईटी जाना है, मुझे इस कॉलेज में जाना है। हमेशा एक बचपन से, जो मैंने अपने टेडेक्स में शेयर किया था कि नर्सरी के बच्चों का लाइक वहां पे फोटो लगा के रखा हुआ है होल्डिंग में, और वहां बताया गया है कि क्लास टॉपर कौन है। आई थिंक कंपटीशन कहीं ना कहीं इंडिया को हेल्प भी करता है आगे वर्ल्ड में लीडर बनने के लिए। लाइक अगर टॉप सीईओज देखे, सबको ही देखे, तो आज इंडियंस है। तो कंपटीशन अच्छा है लेकिन हेल्दी होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद एवरीवन। सो अगर सी फॉर कंपटीशन एंड सी फॉर कंपैरिजन है, सो सी फॉर कस्टमाइजेशन भी आना चाहिए वहां पे। क्योंकि हमको समझना चाहिए एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट स्टोरी, हर किसी का बैकग्राउंड अलग है, मेंटल कंडीशन अलग है, वो अलग पेरेंट्स के माइंडसेट से आता है, उसके घर का एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है। और हर चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर फिर हम compete करें, और कंपैरिजन के साथ मुझे एक लगता है एक पॉजिटिव फीडबैक आना चाहिए। फीडबैक ऐसा कि स्टूडेंट्स को पता हो वो कहाँ गलत हो रहे हैं, क्या इम्प्रूव हो सकता है, क्यों वो ज्यादा इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक ये सब चीजें अगर हम एड ऑन करें, कस्टमाइजेशन लाए, फीडबैक ज्यादा अच्छा रखें, हम लोगों को मोटिवेट करें rather than just comparing and just telling them to move forward, just pushing them, तो ये बहुत गलत हो जाता है। बिकॉज मैं ड्रॉप लेके मैं कोटा गई थी प्रिपरेशन के लिए, ऑल्दो मैं एक महीना भी रह नहीं पाई वहां पे, आई आई केम बैक। तो मुझे ये वहां पे बोला गया था पहले ही दिन की क्लास में कि तुमको आगे बढ़ना है और दूसरों को ऐसे करना है, लाइक आपको दूसरों को पीछे धक्का देना है और आपको आगे बढ़ना है। तो आई डोंट फील लाइक दैट। मतलब मुझे, मैं वहां से शायद इसलिए वापस आ गई, या मैं बाद में भी गेट की भी प्रिपरेशन के लिए गई थी, बट देन आई थॉट कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे ये भेड़ चाल में चलना ही नहीं है। बिकॉज इतना प्रेशर है यहाँ पे, इतना मेंटल टेंशन है, क्यों ले रहे हैं हम। नॉलेज या डिग्री हमेशा खुद के लिए मुझे लगता है लेनी चाहिए, और ना कि हमको प्रेशर में आके कुछ करना चाहिए। तो कस्टमाइजेशन शुड बी देयर। आपकी क्या इच्छा है, आप वही करें, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। सबने बात करी है यहाँ पे कि अगर सी फॉर कंपैरिजन है तो सी फॉर कस्टमाइजेशन भी होना चाहिए। इस पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि अगर हम बात करें तो सीबीएसई की बात कर ले तो सारे इंग्लिश मीडियम और बहुत ही स्टैंडर्ड कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी सेम सिलेबस पढ़ रहे हैं कंपेयर टू जो गांव में स्कूल्स है वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं। सो उनकी अपब्रिंगिंग काफ़ी डिफरेंट है, उनका सब कुछ काफ़ी डिफरेंट है, आप कहीं से भी कंपेयर नहीं कर सकते। बट उनका एजुकेशन जो आपको उनको दे रहे हो वो सिमिलर है। सो इस कारण में भी कहीं ना कहीं वो जो बच्चे जो गांव देहात से पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, इस मैं कारण वो एक लेवल पे नहीं आ पाते। सो इसके या बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं एक पॉइंट बस इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जब मैं बड़ी कम्युनिटी या जो टेक एकदम टेकी इंसान होते हैं, जब मैं उनको बताती हूँ कि यहाँ के लोगों को, नागपुर के भी या दूसरी सिटी के भी लोगों को स्लैक नहीं पता है या गिटहब नहीं पता है, वो जब मैं उनको बताऊं कि ओपन सोर्स अच्छा गिटहब होता है, दे टेक पेन एंड पेपर इन अ नोटबुक एंड दे राइट GITHUB इन देयर नोटबुक, ठीक है। तो नहीं पता होता है, और ये रियलिटी है। मैंने ईमेल का भी एक एग्जांपल दिया था कि सेकेंड ईयर की लड़की जो कंप्यूटर साइंस की है, उसको ये नहीं पता है कि जीमेल या ईमेल कैसे भेजा जाता है, ईमेल क्लाइंट्स क्या होते हैं, और कहाँ से ईमेल सेंड किया जाता है। वो गूगल सर्च बार में उसको सर्च कर रही है। लोगों को फाइनल ईयर में आके हमने ऐसे भी वर्कशॉप किए हैं जहाँ पे उनको कॉपी पेस्ट भी करते नहीं बनता है। ऐसे लोग हैं जिनको बताना पड़ता है कि कॉपी पेस्ट क्या होता है। मैंने घंटों घंटों अगर कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग की भी प्रैक्टिस करवाई है, तो मैं अपनी टीम के साथ 5-5 6-6 घंटे वहां पे खड़ी रही हूँ वर्कशॉप में, बिकॉज लोग अपना इंट्रोडक्शन नहीं बोल पाते हैं, और कल उनका इंटरव्यू है, एक्चुअल इंटरव्यू, और वो आज अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं कि माय नेम इज ये, मैं इस कॉलेज से हूँ, ये सब। तो लोगों को, जब मैं ये सिटी जैसे बैंगलोर जाऊं या कहीं और जाऊं जहाँ पे बहुत एक्टिव है लोग, जो बहुत अवेयर है, तो वो लोग मेरे ऊपर हंसते हैं कि अरे ऐसा तो नहीं हो सकता, या ये तो मतलब ये तो मतलब दे थिंक इट एज अ जोक। लेकिन जैसा आपने बोला कि सिलेबस एक जैसा है, सिलेबस के साथ साथ हमको कुछ एडिशनल फैसिलिटीज, मुझे ऐसा लगता है, बाकी लोगों को देनी चाहिए जिनको ये शुरू से नहीं मिला है। इन हेरिडेटरी हर किसी के यहाँ इंग्लिश में बात नहीं की जाती है। बहुत बच्चे मेरे पास रोज आते हैं जो बोलते हैं कि मैम मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पाता हूँ, मतलब मुझे आता सब कुछ है, बट जब इंटरव्यूअर पूछता है मैं आउट हो जाता हूँ लास्ट राउंड में, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, या जिनकी प्रोफाइल रेज्यूमे अच्छा है लेकिन वो लोग ईमेल ही नहीं कर पा रहे हैं, बस अटैच कर दिया, विदाउट सब्जेक्ट विदाउट बॉडी ईमेल भेज दिया। तो ये सब, जब वो अच्छा ईमेल ही नहीं कर पाएंगे तो कोई रिवर्ट बैक नहीं करेगा, उनकी प्रोफाइल कोई देखेगा नहीं, बिकॉज दैट इज सेकेंडरी। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये सब, ये हर किसी को हेरिडेटरी नहीं मिलती है अपने घर से, या उनका स्कूल, उनका कॉलेज इतना
पावरफुल नहीं होता कि उनको सब कुछ सिखाए। तो मुझे ये लगता है कि हमको सिलेबस आप सेम रखो, क्योंकि सबको सिमिलर चीजें पढ़ने का हक है, लेकिन आप कुछ एडिशनल फैसिलिटीज दो छोटी सिटी के लोगों को, नॉन प्रीमियर कॉलेज लोगों को, या बड़ी सिटी में भी जो सेम कैंपस में। ऐसा नहीं है कि आईआईटी और एनआईटी के बच्चे नहीं आते मेरी मेंटोरिंग में, वो लोग भी आते हैं। इनफैक्ट अभी मैं 4 से 6 बजे तक रोज मेरा मेंटोरिंग सेशन चल रहा है, जो मैं फ्री में 2 बच्चों को रोज मेंटोर कर रही हूँ, पर्सनल 1-on-1 सेशन। तो उसमें कैपजेमिनी में, आईबीएम में जो इंजीनियर्स है वो लोग भी आते हैं बात करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं आते, तो सारे ही लोग आते हैं। लेकिन आईआईटी के भी जो बच्चे आते हैं, ऑल्दो उनके क्वेश्चंस थोड़े अलग होते हैं, थोड़ा अलग उनका पर्सपेक्टिव होता है, जो बच्चे एकदम ग्राउंड से आ रहे हैं उनका बहुत अलग होता है। तो मुझे ये लगता है कि हमको सबको एक बार एक चांस देना चाहिए, इवन जो आईआईटी में भी पढ़ रहा है, बिकॉज वो भी कोई गांव से आ सकता है, उसको भी एक एक मॉडर्न वे में ढलने में टाइम लग सकता है। तो हमको सबको एक मौका देना चाहिए ये बताने का कि भाई मेरी क्या क्या कमियां हैं और आप हमको कैसे हेल्प कर सकते हो। अगर हम ये फॉर्म के बेसिस में अगर सबसे ले ले और हम किसी को एडिशनल सपोर्ट दे दे, मे बी इंग्लिश का, कम्युनिकेशन का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, या टेक एजुकेशन का जो प्रोग्रामिंग में पिछड़ रहे या जिनको कॉन्फिडेंट नहीं लगता है, तो अगर हम सबको एक मौका दे, आई थिंक दैट वुड बी रियली बेटर rather than just giving equal syllabus but additionally हम कुछ सपोर्ट नहीं दे रहे। ओके, सो क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, सो लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट इंग्लिश। क्योंकि क्या आपको लगता है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड है इंडिया में? क्योंकि मुझे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि आपका पॉडकास्ट इंग्लिश में ज़्यादा क्यों नहीं होता है, या जब बाहर के कोई भी स्पीकर्स आते हैं जो इंडिया के नहीं हैं, तब तो आप इंग्लिश में करते हो, बट इंडियन स्पीकर्स के साथ। सो मेरा मानना है कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी लैंग्वेज है और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और कहीं किसी भी देश के लोगों तक पहुंच सकते हो। एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसका आप इस्तेमाल करो। बट इंडिया में इंग्लिश को ओवर रेट करा गया है, कहीं ना कहीं इसे आपकी एजुकेशन से भी रिलेट करा जाता है, कहीं ना कहीं आपके इंटेलेक्चुअल से भी इसको रिलेट करा जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि, और कहीं ना कहीं जब भी मैं इंटरव्यूज़ लेता हूँ, मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं और बहुत अच्छी पोस्ट के लिए लिए हैं, सो उसमें मैं कभी भी इंग्लिश के बेस पे नहीं जज करता हूँ। अगर मैं ये चीज़ देखता हूँ कि कोई भी जो कैंडिडेट है वो थोड़ा सा भी हेजिटेट कर रहा है या उसे कुछ इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, सो मैं उसे उस पर ना जज करके उसे कंप्लीट फ्री ऑप्शन देता हूँ हिंदी में बोलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कम्युनिकेशन लैंग्वेज, और आपको अपनी बात को दूसरे तक रखने के लिए एक टूल की ज़रूरत होती है जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं। So let's talk about importance of English, or let's talk about what is the perspective. See, every story or everything, every point has like every coin has two sides. So similarly, इसके भी दो पहलू है मेरे सामने। जैसे हमने पॉडकास्ट चालू करने से पहले आज हमने बात की कि क्या हम इंग्लिश में बोलेंगे या हिंदी में बोलेंगे। मैंने भी आपको बोल दिया कि दोनों कंफर्टेबल है, कुछ भी चल सकता है, ठीक है। तो वही चीज होती है, मुझे लगता है कि आपको अपनी, यू शुड बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। आपको जैसे लगता है, मैं कभी भी इंटरव्यूअर या कोई अच्छी कंपनी का एचआर भी होता है, तो मुझे नहीं लगता वो आपको इंग्लिश के, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन ऑब्वियसली जरूरी होता है अगर आप इंडियन कंपनी में जा रहे हैं। पहली चीज ये मैं इंडियन कंपनीज के लिए बोल रही हूँ। अगर आप कॉन्फिडेंट है अपनी बात रखने में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हो रही है, कुछ भी कैंपस रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो अगर आप कॉन्फिडेंट है अपनी बात पहुंचाने में, आई थिंक आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, पहली साइड ये है मेरी कि आप कॉन्फिडेंट रहिए। आप जिस भी भाषा में बात करते हैं आप कॉन्फिडेंट रहिए, और आप अपनी स्किल्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए rather than आप कैसे बोल रहे हैं। कम्युनिकेशन डेफिनेटली एक पार्ट है, लेकिन अगर आप सही चीज को कन्वे कर पा रहे हैं तो आपके लिए वो चीज काम कर जाएगी वहां पे। बट इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है अगर इस पे आते हैं, तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कोविड-19 की सिचुएशन है, सब लोग घर पे रह रहे हैं, हर किसी को रिमोट टीम्स के साथ काम करना है। तो एक बार मैं, एक एचआर है एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के, तो मैं उनसे बात कर रही थी, तो मैंने यही पूछा, तो उन्होंने बोला हम ऐसा कैंडिडेट ढूंढते हैं जिनका कम्युनिकेशन अच्छा हो। हम उसको सिखा तो देंगे कि हमारी कौन सा डेवलपमेंट चल रहा है, कहाँ पे मेंटेनेंस करना है, मोस्ट ऑफ द वर्क इज मेंटेनेंस, तो कैसे करना है क्या है, हम उसको वो टेक्निकल ट्रेनिंग 3 महीने में दे सकते हैं। हम 3 महीने में किसी को नई लैंग्वेज बोलना नहीं सिखा सकते, बिकॉज वो कितना जल्दी अडॉप्ट करता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लैंग्वेज ट्रेनिंग नहीं देंगे किसी को, हम टेक्निकल ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि 3 महीने में टेक्निकल इज पॉसिबल अगर वो थोड़ा बहुत पहले से जानता है। तो दैट रियली ओपन माई आईज, बिकॉज
आप कम्युनिकेशन किसी को नहीं सिखा सकते, वो शायद थोड़ा बहुत हेरिडेटरी भी आता है, थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट से भी आता है, तो आपको एडिशनल काम करना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि उनकी कंपनी में ऐसा है कि वो इंडिया से ऑपरेट भले ही कर रहे हैं, बट जापान के क्लाइंट्स हैं, यूएस के क्लाइंट्स हैं, यूके के क्लाइंट्स हैं। अगर आप एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं लेकिन आप लिसनिंग प्रॉपरली, आप सुन नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि क्लाइंट बोलना क्या चाह रहा है, या आप कन्वे नहीं कर पा रहे, आपका कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा, तो आप क्या बनाएंगे? आप जो बनाएंगे वो यूजफुल नहीं रहेगा, या वो 100% लाइक वो रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करेगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि क्यों इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हाँ, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है कहीं हद तक, और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी शुड बी ऑल्सो लाइक, अब हमको कंफर्टेबल रहना चाहिए हिंदी में भी, लेकिन अभी जो रिमोट जॉब्स का कल्चर आया है और ये बढ़ने वाला है, अब कोविड-19 के बाद हर किसी के पेरेंट्स जो इलिटरेट भी है, उनको पता है कि मेरा बेटा घर से काम कर सकता है, लैपटॉप लेके घर से भी काम होता है। तो हर किसी को अब समझ में आ गया है कि लाइक इट्स नॉट जस्ट अ प्ले थिंग, यू कैन वर्क फ्रॉम होम, आप घर से बैठे-बैठे पैसे कमा सकते हो। तो अगर आपको ग्लोबल लेवल पे जॉब करना है, अगर आपको ऐसी जगह काम करना है जहाँ पे ग्लोबल क्लाइंट्स हो, ग्लोबल एक्सपोज़र हो, सारी चीज़ें हो, आपको कहीं इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे टॉक देनी है, बहुत सारे अच्छे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जो ट्रांसलेटर्स रखते हैं, लेकिन हर बार ये चीज़ें नहीं मिलती है। तो अगर आपको उस लेवल का करियर अगर आप ड्रीम करते हैं, तो हाँ, एक ऐड ऑन आपको करना है। लोग फ्रेंच सीखते हैं, लोग जापानीज़ सीखते हैं, चाइनीज़ सीखते हैं अपने-अपने काम के रिलेटेड, तो आपको एक इंग्लिश को भी एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज की तरह ट्रीट करके आपको वो भी सीख लेना है। अगर मैं दूसरी लैंग्वेजेस सीख रही हूँ, वैसे ही वो भी सीख लेना है, बस इतना ही है। तो दिस इज जस्ट अ एड ऑन। अगर आप करते हैं एड ऑन, तो दैट विल बी रियली फ्रूटफुल, एंड इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड पीपल अंडरस्टैंड इट। तो आपको ये समझना जरूरी है, आप भाग नहीं सकते इस चीज से, और अगर आप ऐड कर लेते हैं अपने स्किल्स में, तो दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। सो टोटली इंग्लिश इज डेफिनेटली यूजफुल एंड इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, जैसा कि आपने कहा, बट कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप किसी इंटरव्यू या किसी में भी जा रहे हो, आपको अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान रखना है, आपको अपने कंटेंट पे विश्वास रखना चाहिए। लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बट अगेन इफ़ यू आर वर्किंग फॉर एनीवेयर जहाँ आपको मल्टीपल देशों के साथ बात करनी पड़ सकती है, सो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। सो लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द एंट्री बैरियर्स। किसी भी टेक्नोलॉजी में किसी ना किसी तरीके के एंट्री बैरियर्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में वो एंट्री बैरियर्स बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द एंट्री बैरियर्स, और आप किस तरीके से उनको ओवरकम करने के लिए आपकी कम्युनिटी क्या काम कर रही है टेक्नोलॉजी के एंट्री बैरियर्स को, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजीज लाइक पाइथन, यू आर वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजीज लाइक AI, ML, ऑल दोज कोर्सेज। सो और आप ऐसी सिटीज़ में काम कर रहे हो जहाँ पे प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन भी मुश्किल है। सो आप किस तरीके से इसे मैनेज करते हो, क्या आपका थॉट प्रोसेस रहता है? वुड लव टू नो। तो एंट्री बैरियर बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अब जैसे अगर हम साउथ इंडिया में काम कर रहे हैं, तो कभी कभी ये होता है, या कोई भी जगह पे काम कर रहे हैं, तो कहीं की लोकल लैंग्वेजेस होती है, और कुछ बच्चे जो बैकग्राउंड से आ रहे हैं ऐसे, जो मतलब ज़्यादा इंग्लिश के साथ ज़्यादा हिंदी भी उतनी नहीं जानते हैं, तो फिर उनको हमको तेलुगु, तमिल या मराठी या ऐसी लैंग्वेजेस हमको बोलनी पड़ती है। हमको उसमें इंस्ट्रक्टर्स ढूंढने पड़ते हैं जो उनको उस लैंग्वेज में पढ़ा सके, या एटलीस्ट अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी जा रहा है, तो वो बीच बीच में अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज करके उन बच्चों को मोटिवेट कर सके, उनको बता सके कि क्या है, सो दैट अगर बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो उनसे रीजनली लैंग्वेज में पूछ सके कि हाँ, ये डाउट है मेरा, या जो भी है, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है एक क्लास में। तो आई थिंक पहली चीज हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि लैंग्वेज बैरियर ना हो, या अगर किसी को स्पेशल नीड्स है लैंग्वेज के रिलेटेड, तो वो हम लोग उसको केटर करें। द सेकेंड थिंग वुड बी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। अगर मैं बात करूँ, तो पहली चीज तो रिसोर्सेज होते हैं कि कहाँ पे इंटरनेट है, कितने लैपटॉप है, कितने कंप्यूटर्स अवेलेबल है। जैसे अगर मैं स्लम की बात करूँ, तो अभी कोविड-19 में ऐसा है कि हम लोग इकट्ठा नहीं कर सकते, तो हमारे पास वहां पे स्कूल है दिल्ली में, मतलब एक स्कूल है स्लम एरिया में जहाँ पे 5 कंप्यूटर्स है, और हमारे पास 21 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी वहां पे। तो अब उसमें ऐसा होगा कि अगर 5 कंप्यूटर्स है और मेरे पास 21 बच्चे हैं, तो उसमें ये होगा कि मुझे पता है कि एक कंप्यूटर बहुत सारे लोग शेयर करने वाले हैं, और मुझे उसमें उनको इंस्ट्रक्ट करना है। मेरे पास एक ही प्रोजेक्टर है, एक कनेक्शन है, तो उस हिसाब से मुझे जितना मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मुझे उसमें कैसा एडजस्टमेंट करना है। सेकंड चीज हम लोग वो सोचते हैं, हम लोग क्या पढ़ाएं जिससे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिले, लोगों का मोटिवेशन भी बना रहे, और साथ में रिसोर्सेज भी
शेयर हो पाए, बिकॉज हर टाइम अभी हम लोग भी मतलब स्ट्रगल ही कर रहे हैं, तो मॉनेटरी वाइज या ये ग्रांट्स वाइज अभी वी आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि हम सबको प्रोवाइड कर सके इक्विपमेंट्स। जहां हम कर पाते हैं हम बिल्कुल अपने तरफ से देते हैं, या हम लोग कोशिश करते हैं इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने की किसी और की हेल्प से, बट हम रिसोर्सेज पे ध्यान देते हैं लैंग्वेज के बाद। और थर्ड चीज ये हो गई कि हम लोग ये समझते हैं कि पहले बच्चे का लेवल कितना है, उसको क्या पता है, उसको क्या कंप्यूटर चलाना आता है, क्या कंप्यूटर चलाना नहीं आता। बिकॉज जैसे कल ही हमारी नव गुरुकुल में बात हो रही थी, तो अभी एक हम लोग तेलुगु में बैच करने वाले थे वहां पे पाइथन प्रोग्रामिंग का 3 महीने का। तो अब वहां पे ये चीज है कि उनको ये ही नहीं पता, कुछ बच्चे ऐसे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो 8th स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए हैं, बट वो भी तेलुगु में पढ़े हुए हैं, और उसके बाद उनको कंप्यूटर उन्होंने कभी देखा नहीं है। तो अगर हमको उनको यहाँ से रिमोटली पढ़ाना है पाइथन, तो हमको पहले ये सिखाना पड़ेगा कि कहाँ किस चीज पे क्लिक करना है, कैसे जाना है, ओपन कैसे करना है फाइल। बट मैं यही अगर किसी बड़ी सिटी में जाके ये वर्कशॉप दूं, तो वो लोग मेरे ऊपर गुस्सा होंगे कि ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये सब क्या बता रहे हैं बेसिक से, ये तो हमको आता है, ये हमने बहुत पहले ही कर लिया। तो ये हमको ध्यान देना रहता है कि कस्टमाइज कैसे करना है। तो हम पहले ही बच्चों से सर्वे लें, उनसे पूछे कि उनको क्या आता है, बैकग्राउंड आता है कि नहीं, ये चीजें आती है कि नहीं, और फिर हम उनको प्रिपेयर करवाए। तो डायरेक्टली हम AIML वर्कशॉप्स नहीं कर सकते वहां पे, हमको पहले उनको सिखाना पड़ेगा कि कंप्यूटर क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम मतलब बाकी चीजों पे जंप करते हैं। तो ये 3 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, एक लैंग्वेज, एक कितने रिसोर्सेज हैं, कितने लोगों में शेयर हो रहे हैं, और थर्ड चीज ये होती है कि हम लोग कितने लेवल के लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से हम चीजों को कस्टमाइज करें। इट्स अ वेरी वेरी डिलाइटफुल टू नो कि आप इतनी तरीके से इस चीज़ को मैनेज कर रही हैं, एंड इट्स अ वेरी हार्ड thing to manage such a great and such a big community. You have influenced more than, I guess, 60,000 students in past 3 years. So let's talk about your management skills. This was not the question which was mentioned there in the script, but let's talk about your management skills, because you are managing India's one of the biggest tech communities. So how you are doing so many people so gracefully? तो मैनेजमेंट की बात की जाए तो थैंकफुली मेरे पास अच्छे लोग हैं और अच्छी टीम है। मैं अकेले ये सब नहीं कर सकती, और ये मेरा नहीं किया हुआ है। ऑल्दो जस्ट आई एम द फेस, तो मैं इंटरव्यूज करने जाती हूँ या मुझे अवार्ड्स मिल रहे हैं, बट ये मेरा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई टीम। सो देर इज माई को फाउंडर मोहित, ही मेनली टेक्स केयर ऑफ ऑपरेशंस, एंड देन आई हैव फ्यू मोर पीपल इन माई टीम हु वर्क विथ मी फ्रॉम नागपुर। तो हम लोग यहाँ पे 24/7 मोस्टली एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं। वी राइट डाउन एवरीथिंग कि कहाँ पे क्या चल रहा है, एंड देन वी टॉक टू ऑल द लीड्स जो अलग अलग सिटी में मतलब इस इनिशिएटिव को चला रहे हैं, तो कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो इनफैक्ट अगर कम्युनिटी बड़ी भी हो गई है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सबसे पर्सनली बात कर सके, बिकॉज बहुत सारे लोग अंडर ग्रेड है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कभी उनके आपस में भी झगड़े हो जाते हैं, मतलब ऐसा होता है। तो हमको ये मेक श्योर करना है कि हम उनसे पर्सनली बात करके वो चीज रिजॉल्व कर दे। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर हो, कॉलिंग नंबर हो, वो हमको कॉल कर सके कभी भी, या ईमेल कर सके, या जैसे भी हम उनके साथ टच में रहे, ताकि कुछ भी लोकल लेवल पे कोई भी नेसेसिटी होती है तो वो हमको पता चलती रहे। सो दिस इज व्हाट वी डू। द सेकंड थिंग इज वी ऑल्सो चेक ऑल द फीडबैक्स कि कौन सी सिटी में किस इवेंट का क्या फीडबैक आ रहा है। अगर और ये फीडबैक हम एनोनिमस रखते हैं, ये चैप्टर लीड्स या सिटी लीड्स को नहीं पता होते कि क्या फीडबैक बच्चे लिख रहे हैं। तो उससे ये चीज होती है कि हमको डायरेक्टली पता चलता है कि अगर कुछ मैनेजमेंट में लोकल लेवल पे प्रॉब्लम है, कुछ भी इश्यूज है, कोई भी चीज है, तो हम उनको सीरियसली पढ़ के हम उसके ऊपर एक्शन ले। और थर्ड चीज अगर मैनेजमेंट से बात करें, तो आई थिंक वी डोंट फॉलो लीडर फॉलोवर अप्रोच। लीडर फॉलोवर अप्रोच ऐसा होता है कि मैं लीडर बन जाऊं, मैं सबको बोलूं कि मेरे डिसीजंस को फॉलो करो। समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे अपना डिसीजन लेना पड़ता है, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें माय डिसीजन एज अ लीडर मैटर्स। लेकिन मोस्टली जो कम्युनिटीज चलती है, वी टेल एवरीवन कि ये तुम्हारी कंपनी है, ये तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये तुम्हारा सिटी है, सो यू हैव टू लीड अकॉर्डिंग टू दैट। आपको पता है कि लोकली वहां पे किस चीज की जरूरत है, हम नहीं बता सकते, और इसलिए हमने आपको वहां पे अपॉइंट किया है। वरना हम खुद से लोगों को वहां पे रख देते जो हमारे पहचान के होते या हमारे साथ के होते। तो ये चीजें बहुत हेलो
या सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम उनको लीडर बनाए. सो इट्स अ लीडर लीडर अप्रोच कि हम भी लीडर है, आप भी लीडर बनो, एंड यू कैन एक्सप्रेस योर thoughts, you can teach whatever you want. We will be a add on support to you and not टेक योर लाइमलाइट अवे. तो इसलिए आप अगर कोई भी सोशल मीडिया पे जाएंगे, अगर आप लिखेंगे गर्ल स्क्रिप्ट, तो आपको बहुत सारे पेजेस दिखेंगे. गर्ल स्क्रिप्ट हैदराबाद, गर्ल स्क्रिप्ट नागपुर, गर्ल स्क्रिप्ट चंडीगढ़. तो हर किसी का अपना सोशल मीडिया है, हर किसी का अपना चैनल है कम्युनिकेशन का, हर किसी को अपनी इंडिपेंडेंस दी गई है ताकि हम लोग उसमें ज्यादा इंटरफेयर ना करें. हाँ, एक पॉइंट पे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको चेक्स रखने पड़ते हैं कि क्या मैसेजेस जा रहे हैं, कुछ गलत ना हो जाए, मतलब ये आपको मेक श्योर करना होता है. तो डिस्कॉर्ड पे हमने सबको इकट्ठा किया हुआ है, जहाँ पे हर सिटी का हमने एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है. बट उसके अलावा यू आर फ्री टू कम्युनिकेट, यू आर फ्री टू मीट, फ्री टू जनरेट आइडियाज, एंड वी विल वर्क ऑन इट. सो दिस इज हाउ वी वर्क. Yeah. So let's also talk about technical issues. There are, I mean, as you said, there are technical knowledge which is lack in current education system. You told us that people are not even able to mail properly, and students of first and second or third semester are not even able to write proper email or introduce themselves properly. So what is the basic, what is the basic problem, and where is the basic problem? Basic problem is there only, as we discussed earlier, that everybody has a similar syllabus. Like entire India is almost like studying like similar kind of things, but the problem lies that we don't understand that what story an individual carries. Like if I can be, like people can be entrepreneurs at different stages according to like when they feel they should do a startup. So we cannot judge anyone by कि आपने कब स्टार्टअप किया, आप कैसे सक्सेसफुल हुए, आपको कब फंडिंग मिली. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कभी फंडिंग नहीं मिलती है, कभी भी वो लोग कुछ मनी रेज नहीं करते, सब कुछ बूटस्ट्रैप करके भी वो मिलियन बिलियन डॉलर कंपनी बन जाते हैं. सिमिलरली आप एजुकेशन में भी यही चीज होनी चाहिए. या प्रॉब्लम मेनली यहीं पे है कि अब जैसे मैंने सीएस की डिग्री में तो एडमिशन ले लिया, लेकिन मुझे कभी नहीं बताया जा रहा है कि रिक्रूटर को ईमेल कैसे किया जाता है, या कौन सा फॉर्मेट होता है, उसको लिखा कैसे जाता है, इंग्लिश में कैसे लिखना है, कौन सी चीजें नहीं लिखनी है, या ईमेल. अब मैं जाती हूँ कॉलेजेस में, तो लास्ट ईयर हमने करीबन 5,000 बच्चों को पर्सनली पढ़ाया है कि ईमेल कैसे लिखते हैं. सीसी और बीसीसी का उनको फुल फॉर्म नहीं पता होता है. 2CC BCC फील्ड्स क्या होती है, इनका मतलब क्या होता है, और अगर हम किसी को सीसी में ईमेल भेजते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, जो अपना पूरा डेटाबेस शेयर कर देते हैं बच्चों का. वो लोग सबको सीसी में लिख के या सबको 2 में करके ईमेल या कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस कॉलेज का भेज देते हैं. ऐसे बहुत सारी गलतियां शायद खुद मैनेजमेंट करता है पहले कॉलेज का, या खुद यूनिवर्सिटीज करती है, और ये होता है. अब लोगों को भले कितना भी अनबिलीवेबल लगे, बट मुझे पता है, मैंने ये देखा है ग्राउंड रियलिटी पे, तो ये चीज होती है, और हम खुद ही वो चीज उनको सिखा रहे हैं. उनको भी बेचारों को पता नहीं होता, वो भी यही करते हैं. तो मेरे पास शुरू शुरू में भी ऐसे लोग आए थे, कुछ इंटर्न्स भी आए थे, जिन्होंने, अब 1,000 लोगों का अगर इवेंट हो रहा है, मैंने उनको बोला है कि इनको ईमेल कर दो, तो मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया वो ईमेल. और तब मैंने देखा कि वो 1,000 बच्चों को सबको दिखाई दे रहा है कि ईमेल किस किस को गया है. तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है जो हमको नहीं पता होती है. तो मुझे ये लगता है कि ये बेसिक्स, जैसे हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, उनको नहीं पता कौन सी न्यूज शेयर करनी है, ओटीपी कब देना है, नहीं देना है. और मैं अभी 2-3 महीने पहले ही मैंने साइबर सेल विजिट किया था, लाइक कुछ काम से, एंड मुझे वहां पे सारे केसेस जितने लोग आए थे सब यही मिले. सब लोग मेरे पेरेंट्स के ऑलमोस्ट एज के थे या थोड़े छोटे थे. उनका सिर्फ यही कंप्लेंट था कि हमारे पेटीएम से पैसे निकल गए, हमारा फोन पे से कुछ हो गया, हमारा गूगल पे से अभी पैसे वापस नहीं आ रहे हैं, या किसी ने हमको कोई लिंक भेज दिया. सबका कंप्लेंट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर. तो हम शुरू से, चाहे इंसान बीकॉम का हो, बीएससी का हो, बीए का हो या बीटेक का हो, हमको सबको बताना चाहिए कि इंटरनेट पे सिक्योर कैसे रहना है, क्या चीज़ों पे क्लिक करना है, कैसे चीज़ों से बचना है, कैसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, कैसे ईमेल करना है. एक बेसिक स्किल. अभी कोविड-19 है, हर कोई जिनको शायद लिटरेसी या टेक एजुकेशन नहीं आता, वीडियो कॉल तो करते आता है व्हाट्सएप पे, लेकिन फिर भी हमको व्हाट्सएप चलाने के भी एथिक्स शायद अपने पेरेंट्स को, हर किसी को सिखाने चाहिए कि कौन सा मैसेज फॉरवर्ड करना है, क्या है. तो ये बेसिक चीज़ें अभी भी, चाहे
कितनी भी पॉलिसीज निकल जाए, कुछ भी हो जाए, हम जब तक रूट कॉजेस पे काम नहीं करेंगे कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। अभी भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है और ना होगा जब तक हम ग्राउंड रियलिटी, जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं उनको आना चाहिए और देखना चाहिए, इन लोगों के साथ कुछ वक्त बिताना चाहिए, तब वो बना पाएंगे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी विदाउट एनी लूप होल्स, और फिर वो लोग काम कर पाएंगे इन लोगों के साथ। एंड दिस इज व्हाट आई फील। Amazing. So finally, if you have some message for people who are listening us, the whole conversation was full of messages, but if you have something specific for the audience, so please go ahead. Yeah. So the message would be, believe in yourself. A lot of people also criticized me when I started with my own organization that you are copying any other community, any other international organization. आप कॉपी कर रहे हो, लेकिन बाद में मेरी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए काम की बिकॉज लोगों को फायदा हुआ। और हर अच्छी चीज में लोग बुरा भी बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं। तो मुझे ये लगता है पहली चीज आप ये सीखे कि मॉकिंग और फीडबैक में क्या डिफरेंस होता है। फीडबैक पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। मॉकिंग ऐसी चीज होती है जो आपको सिर्फ जस्ट फॉर पुलिंग योर लेग्स, कुछ लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, तो आपको उन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर कोई अच्छा फीडबैक दे रहा है, भले ही नेगेटिव है, आपको उस पर काम जरूर करना चाहिए। द सेकेंड थिंग वुड बी, आपको कितने भी आपके ड्रीम्स, आपके एस्पिरेशंस आपको कितने भी अनरियलिस्टिक लगे, बट अगर आप उस पर बिलीव करते हैं, आपको उसको जरूर लिख के रखना चाहिए, एक गोल बनाना चाहिए कि मुझे इतने टाइम तक ये चीजें अचीव करनी है, ये जरूर पॉसिबल होता है। भले ही वो कितना अनरियलिस्टिक आपको आज लग रहा है, 4-5 साल बाद आपको खुद लगेगा आई अचीव्ड इट, and you will feel so fantastic and amazing at that time. So believe in yourself and do not look for others, do not compare, just build your own story and write your own script. So this is my message. Yeah, amazing message from you. सो विद दिस आज का इंटरव्यू हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपको होस्ट करने में हमें बहुत ही अच्छा लगा, और वी रियली थैंकफुल फॉर योर टाइम। आई एम श्योर यू आर रियली बिजी टुडे बिकॉज आप इतनी बड़ी कम्युनिटी को कॉन्स्टेंटली मैनेज करते हो। आज भी आपके कितने सारे टॉक्स जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं। सो थैंक्स फॉर कमिंग ऑन XRDI कम्युनिटी। एंड सो अगेन, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में मैं आपसे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा। सो वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी आने वाले समय में एक बहुत शानदार और बहुत ही लीडिंग टेक्नोलॉजीज़ बनने वाली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं इस समय। सो और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। सो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? मेरे पास हर चीज से थोड़ी ना थोड़ी कुछ स्टोरी रहती है। तो हम लोग मॉसफेस्ट अहमदाबाद में थे 2017 जनवरी में, 6-7-8 को हुआ था ये। और वहाँ पे एक बच्चा हमारे स्टॉल पे आया था, मॉजिला रिप्रेजेंट कर रही थी मैं तब। तो वो बच्चा ए फ्रेम हम लोग यूज करके लाइक VR गेम्स बनाना सिखा रहे थे। ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन टू दैट, और उसने हमसे सीखा, मतलब वन ऑफ माई फेलो रिप्रेजेंटेटिव से गेम बनाना सीखा। उसने खुद का गेम बनाया, एंड देन ही कैन विजुअली लाइक प्ले दैट गेम यूजिंग अ VR बॉक्स। मतलब गेम बनाया इन द सेंस ही मेड सम चेंजेस इन द प्रीवियसली लाइक रिटन कोड। सो ये चीजें बहुत फैसिनेटिंग है, और जिनको नहीं पता है इस चीज के बारे में, ये हर कोई सीख सकता है। पहली चीज ये है इस व्हाई VR एंड ER आर इम्पोर्टेंट। इट्स नॉट जस्ट फॉर गेमिंग पर्पस। अगर किसी को मिसकंसेप्शन है, ये आपको मेडिसिन में मतलब डॉक्टर्स अगर है, इंजीनियर्स है, एजुकेशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आगे चल के। लोग विजुअली देख सकते हैं कि कैसे एक मशीन चलती है, क्या होता है। आपको चीजों की जरूरत नहीं है वहां पे। तो मैं बस यही अपील करना चाहूंगी कि गेट इन्वॉल्व विद योर कम्युनिटी, जिसको भी गाइडेंस चाहिए। एंड सेकेंड चीज ये चीज है कि जस्ट डोंट थिंक इट एज समथिंग लाइक गेमिंग। उसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो आप जाइए उसके बारे में पढ़िए, और आपको कुछ भी हेल्प लगती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अवी, एंड देन ही कैन गाइड यू मोर ऑन दैट। Yeah. Thanks, Anubhav. It's an important and very, very crucial message for us. So thanks for coming on the show. Thanks for giving us your time, and we'll see you. So this was Anubhav Maneshwar, and we had such an amazing conversation. हमने काफ़ी सारे एक्सपेक्ट्स को ट्राई करा, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम, उसकी प्रॉब्लम्स और क्या कमी रह जा रही है, क्यों कुछ सिटीज़ पीछे हैं और क्यों कुछ सिटीज़ आगे हैं। हमने इन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी बात करी, और किस तरीके से गर्ल्स स्क्रिप्ट फाउंडेशन जो है वो पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ी टेक कम्युनिटी के साथ बहुत तरीके से गर्ल्स को लीड कर रही है टेक्नोलॉजी में। सो प्लीज़ चेक आउट गर्ल्स स्क्रिप्ट फाउंडेशन। हैव अ ग्रेट टाइम गाइस।
And for next week, we'll see you.